بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کوثر کے فضائل بیان کریں گے اور سورہ کوثر کے حیران کر دینے والے کرشمات کا تذکرہ کریں گے، جنہیں سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے وظائف بھی بتائیں گے جنہیں پڑھ کر آپ دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سورہ کوثر کو پڑھنا کس قدر باعث برکت ہے۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کی گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ایک بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو واٹس ایپ میسج کیا اور بتانے لگے کہ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میری موٹر سائیکل کا پیٹرول زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ شاید میرے عمل پڑھنے میں کمی ہے جس کی وجہ سے میرا پیٹرول زیادہ لگ رہا ہے۔ میں کلاس سے فارغ ہو کر راستے میں مسلسل سورہ کوثر پڑھتا ہوا پیٹرول پمپ پر پہنچا تو پیٹرول کا ریٹ 106 روپے لیٹر تھا۔ میں نے ٹینکی کھول کر دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پیٹرول تھا۔ میں نے پمپ والے کو کہا کہ 300 روپے کا پیٹرول ڈال دو، ساتھ میں مسلسل سورہ کوثر پڑھتا رہا۔ ابھی 270 روپے کا پیٹرول ہی ڈلوایا تھا کہ ٹینکی فل ہو گئی، حالانکہ میرا گمان تھا کہ 300 سے بھی زیادہ کا پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی برکت سے 270 روپے میں ہی ٹینکی فل کر دی۔ ایک اور بھائی زاہد صاحب کا میسج آیا کہ آج صبح میری بائک بہت زیادہ مسنگ کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کی، جس کی برکت سے موٹر سائیکل فوراً ٹھیک چلنا شروع ہو گئی۔ محمد حسن صاحب بتاتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول یہ CNG ڈلواتے وقت مسلسل سورہ کوثر پڑھنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ CNG کے ایک سلنڈر سے میرا تقریباً پورا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ میں نے روزانہ ٹھوکر نیاز بیچے شملہ پہاڑی چوک تک آنا جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہیں آنا جانا پڑ جائے تو وہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ پچھلے اتوار کی رات کو میں نے سلنڈر فل کروایا تھا اور آج جمعرات تک ختم نہیں ہوا، بلکہ واپسی گھر بھی اسی CNG میں پہنچ جاؤں گا۔ میاں عابد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب ہماری دکان پر سامان آتا ہے تو ہم اس پر 129 بار سورہ کوثر اول و آخر بعد 3 بار درود شریف پڑھ کر پھونک دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس میں ہمیں خیر ملتی ہے اور بہت جلد و سامان بک جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر حسد اور جادو وغیرہ تھا۔ سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے اب ہمیں اشارہ ملنا شروع ہو گیا ہے کہ جنہوں نے جادو کروایا ہے وہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کس طرح بچ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی خیر ہے۔ جب خیر کی امید سے پڑھا جائے تو ہر طرف سے انشاءاللہ خیر ہی ملے گی۔ محمد اعجاز صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنی فیملی کے ہمراہ ملتان گیا۔ 2000 ماڈل کی گاڑی ہے میرے پاس۔ میں نے اس کی ٹینکی پیٹرول سے فل کروائی اور اس پر 11 مرتبہ یا حفیظ پڑھ دیا۔ میری بیوی اور بیٹی نے اول و آخر ایک بار درود شریف 41 بار سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پہ پھونک مار دی۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے ہم پیٹرول کی آدھی ٹینکی کے ساتھ ہی لاہور سے ملتان پہنچ گئے۔ وہاں جا کر
हमने बाकायदा टैंकी को देखा और वापसी पर भी यही अमल किया और फिर आधी टैंकी में घर वापस पहुंच गए। ताहिर इकबाल साहब लिखते हैं कि पिछले दिनों हम 3 दोस्त गाड़ी पर गुजरावाला गए, वहां घूमते फिरते रहे। जब हमने वापसी का इरादा किया और वापस गाड़ी में सीएनजी को देखा तो सिर्फ एक पॉइंट रह गया था। मेरे दोस्त पूछने लगे कि यहीं से गैस डलवा लें। मैंने कहा रास्ते में कहीं से डलवा लेंगे, अभी हम कामुकी से थोड़ा पीछे ही थे कि सुर्ख पॉइंट जल गया। दोस्त कहने लगे अभी तो सीएनजी यहीं से डलवा लेते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने दोस्तों को कहा कि सब सूरह कौसर का अमल करो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हम सीएनजी लाहौर में जाकर ही डलवाएंगे। हम तीनों ने ये अमल पूरे रास्ते में जारी रखा और इस अमल की बदौलत गाड़ी ने 42 किलोमीटर का सफर सुर्ख लाइट पर ही किया। हमने लाहौर पहुंचकर सीएनजी स्टेशन से गैस डलवाई। एक और मैसेज वाहिद साहब ने लाहौर से किया। वो लिखते हैं कि तस्बीह खाने में आने से बहुत कुछ हासिल हो रहा है और इतने मामलात सुलझ रहे हैं कि बताने से कासिर हूं। इसके साथ साथ सूरह कौसर वाले अमल से तो इतने कमालात मुझ पर खुले हैं कि बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। अभी कल ही की बात है कि मेरी वालिदा और बहनोई की बहुत सख्त नाराजगी हो गई। सब रिश्तेदार और बड़े बुजुर्गों ने उनकी आपस में सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था। जब मेरी वालिदा बहनोई के घर जाने लगी तो मैंने उन्हें कहा कि सूरह कौसर का विर्द करें। मैंने और मेरी अहलिया ने बहुत तेज तेज सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से हमारी सुलह करवा दी और हमारे तमाम मामलात सुलझ गए। मोहम्मद शफीक साहब लिखते हैं कि हमारी बहनों के रिश्तों का मसला था। मैंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हजारों लाखों की तादाद में सूरह कौसर पढ़ी। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 8 नवंबर को मेरी एक बहन की शादी हुई और अभी 4 दिन पहले दूसरी बहन की शादी भी खैर आफियत के साथ हो गई है। सब रिश्तेदार हैरान और परेशान हैं कि एक ही साल में 2 बहनों की शादी कैसे हो गई। फिर पूछते हैं कि आप किसके पास जाते हैं। मैंने बताया कि ये सिर्फ सूरह कौसर की बरकत से हुआ है कि हमारे तमाम मसले हल हो गए। इकबाल साहब मंडी बहाउद्दीन से लिखते हैं कि कुछ अरसा पहले मेरे पास एक दोस्त आए। इनका कोई माशी मसला था। मैंने इन्हें बरकत वाली थैली हदिया दी और इस पर सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर पढ़ने का बताया। पिछले हफ्ते रात 1 बजे के करीब वो अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि एक गाड़ी वाले ने जोरदार टक्कर के साथ उन्हें गिराया और खुद भाग गया। वो बताने लगे कि तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने सर पर चोट की वजह से शदीद दर्द महसूस किया। ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया। कुछ देर पढ़कर मैंने हाथों पे फूंक मारी और अपने सर पे दम किया, जिससे मुझे बहुत अफाका हुआ। फिर मैंने मजीद कुछ देर सूरह कौसर वाला अमल पढ़ा और पूरे जिस्म पे दम कर दिया। जिस्म का दर्द मामूली रह गया। एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि मोटरसाइकिल का बहुत नुकसान हुआ था और मेरे जिस्म में भी चोट की वजह से जगह जगह जख्मों के आसार थे। बहरहाल तबीयत थोड़ी संभलने के बाद मैं उठा और घर चला गया। घर जाकर मैंने थैली पर 129 बार सूरह कौसर वाला अमल किया और साथ ही अपने पूरे जिस्म पे भी हाथ फेर लिए, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर इतना यकीन पुख्ता हो गया कि मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक मुझे सूरह कौसर के दम से ही ठीक कर देगा। घर वालों को मैंने अपनी चोटें और जख्म दिखाए और कहने लगा कि न मैंने इनके लिए कोई दवाई खाई है और न ही इस पर कोई क्रीम और लोशन वगैरह लगाया है। सूरह कौसर पढ़कर जिस्म पे दम कर लेता हूँ और जख्म काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं। उसने ये भी ताकीद की कि ये मेरा वाकया और सूरह कौसर का मुशाहिदा अपनी वीडियो में जरूर लोगों को बताइएगा। प्यारे दोस्तों और बहनों, इसी तरह से मोहम्मद कलीमुल्लाह साहिब रावलपिंडी से लिखते हैं कि मैं अपने मुशाहिदात बताने लगूं कि सूरह कौसर पढ़ने से क्या फवाइद हुए हैं और हमारे घर में क्या कुछ चांद लग गए हैं तो शायद पूरी रात बीत जाए। हमने जितने भी वज़ाइफ किए इनकी बरकत से हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम खुशी से झूम उठे हैं। इनमें से एक फायदा ये है कि मेरी बरकत वाली थैली में 1 रुपया भी नहीं था। तकरीबन पूरा हफ्ता मेरी थैली खाली रही और मैं इस पे सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़ता था। फिर मैंने सोचा कि सूरह कौसर का दम पैसों पर नहीं थैली पे करना है,
लिहाजा मैंने सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करना शुरू किया। यकीन जानिए, शाम को मुझे 4,000 रुपए की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने थैली ही में से मुझे 4,000 रुपए दिए और उसके बाद मुझे जब भी पैसों की जरूरत हुई तो मेरा काम बस सूरह कौसर पढ़ना होता है और गैबी मदद अल्लाह पाक खुद कर देता है। मोहम्मद अली साहब लिखते हैं कि मैंने अपने दोस्त को सूरह कौसर का सुबह शाम 129 मरतबा पढ़ने वाला अमल बताया हुआ था। एक दिन वो सरगोदा से लाहौर आ रहा था। इसकी गाड़ी का टायर ज्यादा हवा भरने से फूला हुआ था और इसे खतरा था कि कहीं रास्ते में ही टायर फट ना जाए। उसने इस टायर के ठीक होने की नीयत से सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दी और जब लाहौर आकर देखा तो उसका वही टायर ठीक हो चुका था। मोहम्मद आसिफ साहब लिखते हैं कि मंडी बहाउद्दीन की एक स्कूल टीचर का मुझे फोन आया कि वो 8 माह से हामिला है और उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा है। जब चेकअप करवाया तो लेडी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत खतरनाक है और उसके जाया होने के चांस हैं। कोई वजीफा बता दे कि अल्लाह ताला ये मसला आफियत के साथ हल कर दे। मैंने उसे सूरह कौसर पढ़ने का बता दिया। कुछ दिन बाद उसका फोन आया कि मैंने रोजाना हजारों की तादाद में सूरह कौसर पढ़ी और पढ़ने के 8वें दिन बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई और इस दौरान मुझे इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कि जितनी कांटा चुभने से होती है। आज फिर उनका फोन आया तो कह रही थी कि जो मिसल मशहूर है कि 8वें माह वाला बच्चा जिंदा नहीं रहता, इसके बिल्कुल बरक्स मेरा बेटा 28 दिन का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। ये सूरह कौसर की बरकत से सब कुछ हुआ है और इसी निस्बत से मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। रिजवान मजीद लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब के मामू अपना मकान बनवा रहे थे जिसके लिए ईंटें कम पड़ गईं। उन्होंने जाकर भट्टे वाले से बात की तो वो कहने लगा कि मैं इस वक्त ईंटें नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद इसरार किया लेकिन नौबत झगड़े तक पहुंच गई और वो खाली हाथ वापस आ गए। मैंने उन्हें किसी भी तादाद में सूरह कौसर पढ़कर भट्टे वाले को रूहानी हदिया करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब अगले दिन भट्टे वाले के पास गए तो न सिर्फ उसने एहतराम से बैठाकर चाय पिलाई बल्कि माजरत करते हुए ये भी कहा कि आपको जहां से ईंटें पसंद है वहां से ले जाएं। खुरम गौरी साहब का मैसेज लाहौर से आया है। वो लिखते हैं कि मेरे ससुर साहब एक दोस्त की बेटी का जहां भी रिश्ता होता था टूट जाता था। हालांकि वो पढ़ी लिखी है और हर लिहाज से बहुत समझदार है और उसकी खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं, लेकिन उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन ससुर साहब ने मुझसे तज़किरा किया। मैंने उन्हें सूरह कौसर वाला अमल मुसलसल पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने अपने दोस्त को बता दिया और उन्होंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया और कुछ ही दिन गुजरे तो वो दोस्त हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खुशी खुशी आकर कहने लगा कि मेरी बेटी का रिश्ता वहां से तय हो गया जहां मेरे दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं उनसे इजहार नहीं कर पा रहा था। सूरह कौसर की बरकत से वो रिश्ता खुद तय कर गए हैं। नईम जावेद साहब लिखते हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों पासपोर्ट की तजदीद के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया। किसी दोस्त ने बताया था कि जुम्मे के दिन रश कम होता है। मैंने घर से निकलते वक्त मसनून दुआ पढ़ी। रास्ते में भी सूरह कौसर और दूसरे जिक्र अस्कार करता रहा। जब वहां पहुंचा तो रश बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा सबब बनाया कि मेरी बारी जल्द ही आ गई। मैंने फीस जमा करवा दी। वहां मुझे एक महल्लेदार मिला जो बताने लगा कि मैं 2 हफ्तों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। लोग यहाँ बारी के इंतजार में रात भी गुजारते हैं, लेकिन मुझे अब वो 2 हफ्तों से तजुर्बा हो गया है कि रिश्वत के बगैर कैसे काम निकलवाना है। वो महल्लेदार मुझे कमरे में एक अफसर के पास ले गए और मुझे आहिस्ता से कहा कि ये अफसर किसी भट्टी साहब से बहुत डरता है। आप अपना मोबाइल मुझे दें, मैं इनको कहूंगा कि ये भट्टी साहब का फोन सुने। लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, न ही रिश्वत दूंगा। उन साहब ने खुद ही अपना फोन निकाल कर उस अफसर से कहा ये भट्टी साहब से बात करें और वो अफसर डल गया। जल्दी से उसने मेरे बैंक के चालान फॉर्म पे मोहर लगा दी। इसी तरह आमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे झूठ और रिश्वत से बचाते हुए मेरा पासपोर्ट बनवा दिया। उकाड़ा से अब्बास साहब लिखते हैं कि आज से कुछ अरसा पहले जिंदगी का निजाम बिल्कुल दरहम बरहम था। कारोबार में, घर में, हत्ता कि अपनी जात में भी उलझन थी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने मेरे खालू को वसीला बनाया। उन्होंने मुझे सूरह कौसर कसरत से पढ़ने का फरमाया। मैंने दिन रात सूरह कौसर पढ़ी। अल्लाह ने मुझे बहुत नफा दिया। मैं वो अमल मुसलसल करता रहा तो अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से भी नवाजा और आज
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर में हर तरफ खैर व बरकत, इत्तेफाक व मोहब्बत और अल्लाह की रहमत है कि सुभान अल्लाह। पहले मेरा नमाज में भी दिल नहीं लगता था, अब नमाज भी दिल लगा के पढ़ता हूँ। कराची से सैयद शाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि मैंने रमज़ान के शुरू में सूरह कौसर का अमल किया था। मैंने बहुत ज़्यादा बरकत वाली थैलियाँ लोगों में जगह जगह बांटी थी। एक इलाके में थैलियाँ बांटते हुए मुझे एक साहब मिले जो कहने लगे कि आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं। मैं उनका ये सवाल सुन के बहुत हैरान हुआ, क्योंकि एक ज़माने मैंने उनके अच्छे दिन देखे थे और हमारे उनके साथ पुराने ताल्लुकात थे। मैंने वजह पूछी तो बताने लगे कि आप जानते हैं मैं बढ़ई हूँ। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे कुछ अरसे पहले मेरे कारखाने में कुछ लोग आकर मुझसे लकड़ी की कोई चीज़ बनाने के लिए कह गए, जो मैंने बना दी और वो बगैर पैसे अदा किए ले गए। कुछ दिनों बाद दोबारा आए, कुछ और बनवाने का मुतालबा किया तो मैंने माजरत पेश की। बस इसी माजरत की वजह से उन्होंने मेरे पूरे कारखाने को आग लगा दी, हत्ता कि मेरे औजार भी सारे जल गए। अब मैं रोड पे आ गया हूँ। मैंने उन्हें 100 रुपये हदिये की नीयत से दिए और साथ ही सूरह कौसर का अमल भी दिया और आगे चल दिया। ईद के बाद जब उन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशी से मुझे गले लगाया और शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुसरत से बताने लगे कि जब मैंने आपसे थैली ली, घर जाकर मैं और मेरी अहलिया 3 दिन मुसलसल सूरह कौसर का अमल पढ़ते रहे। 3 दिन तक तो कुछ ना मिला, मगर चौथे दिन से वो मिलना शुरू हुआ जो आज तक मिल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मिलता रहेगा। चौथे दिन मुझे एक साहब का फोन आया कि लकड़ी का कुछ काम करवाना है, आप कर देंगे? मैंने कहा जी जरूर करूंगा। कहने लगे फुला जगह आ जाए। मैं वहां गया तो मुझे साथ ले गए और जाकर सिर्फ 2 घंटे काम करने पर 1500 रुपये अदा किए। जरा अंदाजा करें कि उस बंदे की खुशी का क्या आलम होगा जो 3 दिन पहले 100 रुपये उधार मांग रहा था और आज अल्लाह पाक ने उसे बाइज्जत तरीके से 1500 रुपये अता फरमा दिए कि उसके बाद वही साहब कहने लगे कि मेरी बहन के घर भी लकड़ी का काम करवाना है, आप वो भी कर दें। मैंने जाकर वहां भी काम किया और 2 दिन काम करने पर मुझे अल्लाह पाक ने 6000 रुपये अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा के घर भी काम कर दे। मैंने वहां भी काम किया। अब कारखाना जल चुका था। लोगों के घरों में काम करने से ही अल्लाह पाक ने मुझे माह रमजान में तकरीबन 28,000 रुपये अता फरमाए। फिर वो साहब बताने लगे कि मैं चाहता था मुझे एक सुनार की दुकान पे काम मिल जाए, लेकिन वो मुझे काम नहीं देता था। जब मैंने सूरह कौसर पढ़ना शुरू की तो उसके पास गया और फिर काम मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे एक मॉडल बना कर दिखाओ तो फिर बताऊंगा। मेरे पास औजार तो नहीं थे। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर की बरकत से ही उसके दिल में नरमी डाली और उसने मेरे साथ अपना एक आदमी भेज दिया। मैं औजार लाया और एक नमूना बनाकर जब उसे दिखाया तो वो इतना खुश हुआ कि फौरन ही मुझे 1.25 लाख रुपए के काम का ऑर्डर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बहन लिखती हैं कि हम जब भी घर के लिए राशन लाते हैं तो उस पर 129 बार सूरह कौसर वाला अमल पढ़कर फूंक मार देते हैं, जिसकी ऐसी बरकत होती है कि 1 माह के राशन से तकरीबन 2.5-3 माह गुजर जाते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमें किचन से मिल जाती हैं और हम कहते हैं कि ये चीज कब और कहां से आई। तकरीबन 3 माह बाद मेरी अहलिया कहती हैं कि फलां चीज खत्म हो गई है, वो ले आए। प्यारे दोस्तों और बहनों, ये थे सूरह कौसर के कुछ मौजिज़ात। अब यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। कपड़े की एक अदद थैली जो बआसानी जेब में आ सके, इस पर सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर मा तस्मिया और अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दम करें। इसके अलावा दिन में जितनी दफा भी थैली में नोट डालें या निकालें, 1 दफा सूरह कौसर पढ़कर दम कर लिया करें। बिजली और गैस का मीटर, घर का राशन, गाड़ी में पेट्रोल, मोबाइल में बैलेंस या किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त करने से पहले 1 बार सूरह कौसर जरूर दम करें। यह आम मामूल की जिंदगी का अमल है जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ और हो रहा है। आप खुद भी निहायत ही आसान अमल जिंदगी में लाएं और सदका जारिया और बरकत को आम करने की नीयत से दोस्तों को मुतारिफ करवाएं और खुदा पाक की गैबी मदद का नज़ारा अपनी आंखों से देखें। गुज़िश्ता दौर की सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, औलिया कराम रहमुल्लाह और उनकी ज़िंदगी में बरकत की वजह नेक आमाल थे। वहाँ बरकत वाली थैली भी उनकी साथ ही थी।
خصوصی دم کی ہوئی برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک انمول تحفہ اور خزانہ ہے۔ آپ تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اسی میں رکھیں اور نکالتے وقت اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں۔ کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ برد اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ روزانہ 129 دفعہ صبح و شام سورہ کوثر ما تسمیہ پڑھ کر اس تھیلی پہ دم کریں۔ یہ عمل دن میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں تو نفع زیادہ ہوگا۔ جتنا کرو اتنا میٹھا۔ اگر تمام عمر کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں۔ وضو بے وضو ہر حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن باوضو برکت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔